नमस्कार। Our country is going to celebrate its 74th Republic Day। एक ऐसा दिन जब अलग अलग जाति, संप्रदाय और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस दिन को बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। 26th of January is celebrated every year in order to mark the day on which our constitution came into effect। क्योंकि 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान और गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक बातें जो हम सभी भारतवासियों को ज़रूर जाननी चाहिए। 26 January 1930 was earlier celebrated as India's Independence Day or Purna Swaraj Divas. It's the day when India decided to fight for their complete freedom. Therefore, the day was made to coincide with the day of Swaraj. 26 जनवरी 1930 को पहले भारत की स्वतंत्रता दिवस और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया था। तभी से इस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। After 20 years, when the Constitutional Assembly was finalizing the date to make Constitution come in force, 26 January was decided in order to honor the great leaders and freedom fighters who were the first to demand पूर्ण स्वराज। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी और 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पे संविधान को लागू किया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बना। Indian Constitution was written by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. It took around 2 years, 11 months and 18 days to be completed. Our constitution is the longest written constitution all over the world and is also considered as one of the best constitutions because of its robustness and flexibility. भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। इसे पूरा होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके लचीलेपन और कठोरता की वजह से इसे विश्व के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। Original constitution was not typed or printed, but it was handwritten by Prem Bihari Narayan Raizada in italic style in 2 languages, Hindi and English. Each page of original constitution was uniquely decorated by 2 Shantiniketan artists, Nandlal Bose and Ram Manohar Sinha. भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे मशीन से नहीं बल्कि हाथों से लिखा गया है और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल में लिखा है। मूल संविधान के हर एक पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने अपने हाथों से सजाया था। There is a difference between flag hoisting and flag unfurling. On Independence Day, the flag is tied and sits at the bottom of the pole, and on this day, the flag is hoisted to signify the rise of a new independent nation. ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन झंडे को रस्सी के सहारे खींचकर ऊपर लिया जाता है, फिर इसे फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं, जो हमारे देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है। On Republic Day, the flag is closed and tied at the top of the pole, and on this day, the flag is unfurled to signify that the nation is already independent. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, इसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। It is the Prime Minister who hoists the flag at Red Fort on Independence Day, whereas the President unfurls the flag on Rajpath on Republic Day. This is because when India got independence on 15 August 1947, there was no president and it was the Prime Minister who was the head of the Indian government. 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज आरोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर झंडा लहराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस समय कोई राष्ट्रपति नहीं थे। तब से हर बार 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। The 21 gun salute to the President of India has a very interesting tradition. 21 cannons are fired at a gap of around 2.25 seconds to encompass the entire 52 seconds of Indian national anthem. This happens in 3 successive rounds of 7 cannons each.
भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देने की एक दिलचस्प परंपरा है, जिसमें राष्ट्रगान के 52 सेकंड को घेरने के लिए 2.25 सेकंड में 21 तोपें दागी जाती हैं। यह प्रत्येक 7 तोपों पे 3 क्रमिक दौरे होते हैं। Republic Day celebrations end on 29th of January with the beating retreat ceremony. This ceremony takes place at Vijay Chowk, New Delhi, and it marks the official closing of 3 days long Republic Day celebrations with a positive note. गणतंत्र दिवस 3 दिन तक चलने वाला एक समारोह है, जो कि 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ खत्म हो जाता है। यह समारोह दिल्ली के विजय चौक पर किया जाता है। स्लोगन्स यानी नारे जनता को प्रेरित करने और क्रांति लाने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है, और भारत ऐसे ही शक्तिशाली नारों का इतिहास है जो विभिन्न लोकप्रिय और प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए। तो आइए कुछ ऐसे ही विशेष नारों को जानते हैं। They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरा शरीर कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। You give me blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। Bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। The preservation of freedom is not the task of the soldiers alone. The whole nation has to be strong. आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। Will face the foe's bullets, but I am free and I shall remain free. हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही धरती पर अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति, संस्कृति और अलग अलग भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार अभिवादन किया जाता है। वंदनम वंदनम तमिलनाडु, चेवाइलो मिजोरम, प्रणाम बिहार, नमस्कार बंगाल, सत श्री अकाल पंजाब, खुल्लम खा त्रिपुरा, नमस्कार असम, वनक्कम आंध्र प्रदेश, शुभाकांक्षी तेलंगाना, नमस्कारम मेघालय, आदाब जम्मू कश्मीर, जय जिनेंद्र गुजरात, जय महाराष्ट्र, शिवॉय मिजोरम, Namaskaram, Kerala. जय श्री राम उत्तर प्रदेश, नमस्कार कर्नाटका, राम राम जी हरियाणा, खुरुमजेरी फ्रॉम मणिपुरी। हेलो गोवा। 26 जनवरी का दिन इस बात का प्रतीक है कि आज जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता हमारे पास है वो हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के निरंतर संघर्ष और बलिदान से प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को GPGC इंग्लिश क्लब की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अनेकता में एकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। जय हिंद।